जय विष्णुपाद परमहंस भौजिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडराचार्य जगत गुरु सी द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस भौजिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So we have among us His Grace Rukmini Krishna Prabhuji. So Prabhuji is very senior devotee and senior disciple of His Holiness Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, and Prabhuji has served previously as temple president of ISKCON Panjabi Bagh, and currently Prabhuji is having bigger responsibility, and Prabhuji is zonal supervisor of Punjab and Haryana, and Prabhuji's philosophical understanding and knowledge and explanation is very deep, and we are really inspired by Prabhuji's presentation as well as Prabhuji's personal sadhana character, and everything is Prabhuji's inspiration for all of us. So we are really blessed that we have among us His Grace Rukmini Krishna Prabhuji. So let's welcome Prabhuji from core of our heart by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Rukmini Krishna Prabhu Ji ki, Srila Prabhupada ki. जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Ram Vishnupad Paramhans Pavajikacharya Stotroshta Shishimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru with the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jam Vishnupad Paramhans Pavajikacharya Stotroshta Shishimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sri Thakur Maharaj Prabhupada ki अनंत कोटि वैष्णववृंद के नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी के श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौ निताय की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे
All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet. Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavat sevaya. Bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naistiki. Krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 31वां अध्याय। अध्याय का नाम है जीव की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। श्लोक संख्या 36। प्रजापतिं स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तदरूपघर्षिता रोहिद्भूतां अन्वाधात् ऋष्रूपी हतत्रप। प्रजापति स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तदरूपधर्षिता रोहिद्भूतां सो अन्वधावत् ऋषरूपी हतत्रप। प्रजापति स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तदरूपधर्षिता रोहिद्भूतां स अन्वधावत् ऋक्षरूपी हतत्रपः। Mataji.
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। प्रजापति ही ब्रह्मा जी ने स्वाम अपनी दुहितरम पुत्री को दृष्टवा देखकर तद्रूप उसके लावण्य से धर्षितः मोहित रोहित भूताम मृगी के रूप में सह वह अन्वधावत दौड़ा ऋक्ष रूपी मृग के रूप में हत विहीन त्रपः लज्जा। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। तात्पर्य, ब्रह्मा का अपनी पुत्री के रूप पर मोहित होना तथा भगवान के मोहिनी रूप पर शिवजी का मोहित होना, ये ज्वलंत उदाहरण हमें शिक्षा देते हैं कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं तो सामान्य बद्धजीव की क्या बिसात है। अतः हर एक को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सगी पुत्री, अपनी माता या अपनी बहन तक से मुक्त भाव से ना मिले जुले, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि मनुष्य प्रेमांध हो जाता है और इंद्रियां पुत्री, माता या बहन का नाता नहीं देखती। अतः मदन मोहन की सेवा में लगकर भक्ति योग के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना सर्वोत्तम होगा। भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन है क्योंकि वे कामदेव या काम वासनाओं को वश में कर सकते हैं। केवल मदन मोहन की सेवा करने से मदन के आदेशों पर अंकुश लगाया जा सकता है, अन्यथा इंद्रियों को वश में करने के सारे प्रयास विफल होंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम को श्रवण कीर्तन करने का इतना सुंदर अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम पूरे वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है।
है ना, निगम कल्पत्रो गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसम आल्यम, ये रस का भंडार है। और श्रीमद् भागवतम हमें अपने जीवन का लक्ष्य बताता है, और कोई भी जीव श्रीमद् भागवतम की शरण लेके जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और भागवतम में तरह तरह की केस स्टडीज़ बताई गई हैं, किसी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो आज के इस प्रसंग में बताया जा रहा है, अगर हम इसी जीवन में कृष्ण प्रेम चाहते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, और कुछ केस स्टडीज़ बताई जा रही हैं। तो इनको बड़े सही परिप्रेक्ष्य में हमें देखने का प्रयास करना है। और यहाँ पे वर्णन आ रहा है, और कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से ये वार्तालाप कर रहे हैं। ये भी बड़ी एक विचित्र वार्तालाप है। इस संसार में शायद कोई ऐसी माँ अपने पुत्र से ऐसे प्रश्न पूछेगी। देवहूति माता ने शुरुआत ऐसे प्रश्न से की, ये मेरे पुत्र, मैं इंद्र तृप्ति करते करते थक गई हूँ, कोई रास्ता बताओ कि जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकूँ। है ऐसी कोई माँ जो अपने माँ बेटे से ऐसा प्रश्न पूछेगी? कोई नहीं होगा। ये भागवतम की उत्कृष्टता है। और जो कपिल देव जी हैं वो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने बताना शुरू किया, बहुत ही विस्तार में सांख्य योग का वर्णन किया। इतना गहरे सिद्धांत जिसको समझना इतना आसान नहीं है, माता देवहूति को समझाया। फिर बताया किस प्रकार से जीव फ्रूटिव एक्टिविटी से अपने हित के लिए जो उल्टे सीधे कार्य करते हैं उसको कितना नरकों में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। नरकों में यातनाएं सहनी करके दोबारा से उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देवोपवेत्ते, ये पहला श्लोक हमने इसी श्लोक अध्याय में पढ़ा। कैसे माँ के गर्भ में जीव कष्ट भोगता है, फिर कोई सौभाग्यशाली जीव होता है उसको पिछले 100 जन्म याद आते हैं। माँ के गर्भ में कष्ट पाते हुए बहुत हृदय से वो प्रार्थनाएं करता है, बोलते इस बारी बाहर निकाल दो, अब मैं विष्णु की शरण ग्रहण करूँगा, दोबारा माँ के घर में प्रवेश नहीं करूँगा, ऐसे कार्य करूँगा। तभी जो माँ के गर्भ में प्रकार की अपान वायु होती है उसको धक्का मारते हैं और बेचारा बाहर आता है। ऐसे बाहर आते जैसे मल से कोई कीड़ा बाहर गिरा हो, खून से लथपथ तड़पता हुआ, और फिर उसके सगे संबंधी खुशियाँ मनानी शुरू कर देते हैं। वो रोता रहता है बेचारा, और फिर जो उसको नहीं चाहिए वो उसको खिलाते हैं, जो चाहिए वो नहीं देते। वो सोचते इससे अच्छा तो माँ के गर्भ में ही था, कि जो भगवान को मालूम था मुझे क्या चाहिए वही मिलता था, यहाँ कोई मुझे समझ ही नहीं रहा। फिर वहीं मलमूत्र त्यागता है, उसको कीड़े मकोड़े काटते हैं। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, भोगण अवस्था में आता है, जो चाहता है वो नहीं मिलता, फिर रोता है। फिर और किशोर अवस्था में आता है, उसके कामुक वासनाएं जागृत होना शुरू हो जाती हैं, तो दूसरे कामुक व्यक्तियों से वो ईर्ष्या करनी शुरू करता है। और बड़ा होता है, अपने आप को एक शरीर मानता है, शरीर को सुख देने के लिए बड़ी सुविधाएं इकट्ठा करता है, स्पर्धा करता है, और इस प्रकार से उसका जीवन और जटिल पे जटिल होता जाता है। और जो उसने वचन दिया था भगवान को कि मुझे बाहर निकाल दीजिए, अब मैं आपका भजन करूँगा, वो सब भूल जाता है और फिर गलत संग में फंस जाता है। गलत संग में फंसता है, दोबारा से उसकी भौतिक इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, और इस माया के जंजाल में फंसता चला जाता है। तो अब पिछले श्लोक संख्या 35 से बता रहे हैं कि इस गलत संग में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो पुरुष के लिए स्त्री का संग और स्त्री के लिए पुरुष का संग, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रभुपाद जी कहते थे मैन इज़ गुड, वुमेन इज़ गुड, बट व्हेन दे आर टुगेदर दे आर नॉट गुड। अजीब सी इक्वेशन है। वास्तव में कोई स्त्री है कोई पुरुष है, दोनों के अंदर एक ही जीवात्मा है, कृष्ण का अंश, दोनों ही प्रकृति हैं, लेकिन माया ऐसी है हम सोचते हैं मैं अलग हूँ वो अलग है, और उनका एक दूसरे का हम भोग करेंगे तो बहुत आनंद पाएंगे। इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम है कि स्त्री पुरुष के सुख में सबसे बड़ा सुख है ना। माता पिता भी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे हैं, बेटी बेटियां सेटल हो जाएं, उनको विवाह हो जाए, मैथुन का सुख मिल जाए, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। ये सब चल रहा है जीवन ऐसे। लेकिन हम जानते हैं पूरे संसार में हर जीव इस मैथुन में रत है और हर जीव दुखी है। ये समझ में नहीं आती बात। श्रीमद् भागवतम हमारी आंखें खोलता है कि वास्तविक आनंद क्या है। आनंद ही तो चाहिए हमें, उस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं, तो क्या आनंद है। तो ये पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है इतना गहरा है। आज के श्लोक में बता रहे हैं कि प्रजापति, जो प्रजापति हैं हमारे ब्रह्मा जी, स्वादुहितरम, अपनी पुत्री
दृष्ट्वा तद रूप दर्शितम, अपनी पुत्री के लावण्य को, सुंदर रूप को देखकर उनसे आकर्षित हो गए। अब सोचिए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, लो क्लास व्यक्ति नहीं, ब्रह्मा जी जिनका पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, इस सृष्टि के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, पूरा शरीर बुद्धि का ही बना हुआ है, उन्हें अर्थ जल अग्नि वायु कुछ नहीं है, केवल बुद्धि से उनका शरीर बना हुआ है। ज्ञान के मूर्तिमान रूप हैं, जिनके हृदय में स्वयं भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया, वो बोलती है अपनी पुत्री की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए और निर्लज होकर हतत्रपा, कोई लज्जा नहीं, उसके पीछे भागे। तो ये वर्णन भागवतम के इसी 30 स्कंद के 12वें अध्याय में आता है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे होते हैं। तो जब ये देखते हैं सारे ऋषिगण मरीचि इत्यादि बहुत परेशान हो जाते हैं। वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप जैसे व्यक्ति ऐसा करेंगे तो पूरी सृष्टि में क्या होगा। लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर सारे ऋषिगण क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इनको बुद्धि दीजिए, क्या हो गया इनको। और फिर भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को बुद्धि आती है, तो उस गलत मानसिकता को वो त्यागते हैं। तो ऐसे प्रसंग भागवतम में क्यों आए हैं, ऐसा नहीं ये सोचकर हमें ब्रह्मा जी के प्रति गलत भावनाएं रखनी है, नहीं, ये केवल हमें शिक्षा देने के लिए है। भागवतम के 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी चेतावनी देते हैं, तेजी असाम न दोषाम, जो बहुत उन्नत जीव होते हैं उनमें कोई दोष दृष्टि नहीं देखनी चाहिए। दिखने में लगे कि वो गलत कार्य कर रहे हैं तब भी नहीं करना चाहिए। मरीचि के पुत्रों ने ब्रह्मा जी का मजाक उड़ा दिया और फिर उनका क्या हर्ष हुआ हम सब जानते हैं। वो हिरण्यकश्यप के आगे जाके वंश में आए, असुर योनि में, फिर वही षडगर्भ असुर बने। तो कभी भी जो उन्नत जीव होते हैं उनसे कोई गलती होती है तो उसका में दोष नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, अरे गलती कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इसलिए नहीं देखना चाहिए कि वो कभी कभी हो सकता है ऐसे प्रभावित हो जाएं, लेकिन तुरंत अपनी गलती को ठीक कर लेते हैं और दोबारा रिपीट नहीं करते ना। साधारण में क्या, जीव में क्या अंतर है, बार बार फिसलता है, लेकिन ऐसे जीव ऐसा नहीं कि रोज ब्रह्मा जी के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं। और कई बारी उन्नत जीवों से गलती कराई जाती है भगवान के माध्यम से, भगवान की इच्छा से। परीक्षित महाराज ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, ऐसे महाभागवत ना। और जैसे वो बाहर आए उनकी कुटिया से, तभी उनको लग गया मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और श्रृंगी के श्राप आने से पहले उन्होंने अपने आप को श्राप दे दिया था कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, है ना, मेरा राजपाट सब खत्म हो जाए, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। श्रृंगी का श्राप तो बाद में आया हूँ, पहले ही अपने आप को श्राप दे चुके थे, है ना। तो ये हैं, तो ये जो तेजस्वी जीव हैं इनमें हमें दोष नहीं देखना चाहिए। तो शिव जी मोहिनी रूप से मोहित हुए, क्यों नहीं होंगे, मोहिनी कौन है, स्वयं कृष्ण है। अगर मोहिनी से भी मोहित नहीं होंगे तो फिर भगवान क्या सुंदर हुए। और शिव जी, मोहिनी जी ने शिव जी को ऐसा घुमाया, ऐसी जगह पे लगी जब सब, जहाँ पे सारे शिव जी के जो भक्तगण थे ओम नमो शिवाय करके उनका उच्चारण कर रहे थे, उनके सामने शिव जी पूरी नग्न अवस्था में वीर्य स्खलित कर रहे हैं। देखिए कितनी शर्मजनक स्थिति है ना। ओम नमो शिवाय कर रहे हो, देखना हमारे शिव जी का क्या हालत हो रहा है, एक स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन शिव जी को शर्म नहीं आई, बोले ऐसे स्वामी मुझे गर्व है ना, ऐसे ऐसे कोई और मुझे आकर्षित नहीं कर पाए, आप ही तो आकर्षित कर पाए। अगर और संसार की स्त्री होती फिर मुझे लज्जा आती, आप थे, आपसे आकर्षित हुआ, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि आप मेरे स्वामी हैं। तो इसलिए इन प्रसंगों को सही दृष्टि से हमें सोचना चाहिए। कई लोग जो मूर्ख लोग होते हैं इनका सहारा लेके बोलेंगे देखो जी उनकी ये हालत, तो हम क्या, हम भी करेंगे ऐसा, तो ये उसका नहीं। तो मरीचि आदि ऋषियों को मालूम चला कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की निंदा नहीं की और ना ही उनका अनुसरण किया, है ना, क्या करेंगे, अनुकरण किया, सॉरी, ना ही उनका अनुकरण किया कि कॉपी की उनको गलती, और ना ही उनको मतलब कि उनको निंदा की, बस उनके लिए प्रार्थना की, है ना। तो ऐसा करना चाहिए, किसी भक्त से कुछ गलती हो तो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ना उसका अनुकरण करना चाहिए, ना उसके लिए जजमेंट पास करनी चाहिए, है ना। और ये जो प्रसंग मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी को बताया, बड़े हिचक से बताया, बोला मैंने सुना है, बड़े हिचक से, ऐसा नहीं कि बड़े खुले में आप बताऊं एक बड़े लेटेस्ट स्कैंडल, क्या बात है बताता हूँ, मसालेदार खबर,
इसमें जो बड़े लाइक्स आएंगे, इसमें देखना क्या फैलेगी ये खबर। नहीं, बहुत ही संकोच के साथ बताया। बताना जरूरी था क्योंकि सृष्टि की रचना का सब पूछ रहे थे, तो ऐसा भी हुआ था, मैंने सुना है, ऐसा करके बताया, डरते डरते बताया। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय, श्री सिंह गौर निताई की जय। तो क्या मतलब, अगर हमें, हमारी जिम्मेवारी है, हमें ऐसे कुछ घटनाओं का वर्णन करना भी है तो बड़े संकोच के साथ किसको करना है, कैसा करना है, ये ध्यान रखना चाहिए, है ना, नहीं तो बहुत बड़े अपराध होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सुंदर शिक्षाएं मिलती हैं कि ये जो काम वासना है, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षण है, ये बहुत एक शक्तिशाली एक फोर्स है, एक वेग है जो व्यक्ति को बिल्कुल निर्लज्ज बना देता है। और पूरा संसार, इसको मैथुन नागार कहा गया है। यहाँ पे ये एक जेल है जिसमें हम जंजीरों से बंधे हैं, और वो जो जेल है किसका, मैथुन नागार। इस मैथुन की इच्छा से हर जीव, मनुष्य योनि में भी, निम्न योनि में भी, हर जीव इससे बंधा हुआ है। पुंसा स्त्री मिथुन भाव मेता तयो मित्तो हृदय ग्रंथ माहु अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्य जनस्य मोह हमाम भेदी। पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है, जब वो मिलते हैं आपस में, मैथुन करते हैं, तो ये ग्रंथि और गहरी हो जाती है। फिर अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्य, फिर घर चाहिए, बच्चे चाहिए, धन चाहिए, फिर मैं और मेरा शुरू हो जाता है। इससे बाहर निकलना फिर मुश्किल है ना। हमारे बचपन के मित्र थे, बहुत ही कंजूस, नंबर 1 कंजूस। तो रहता था किसी और स्टूडेंट के साथ, तो अगर उससे कोई पेन भी मांगता था तो पेन का ढक्कन अपने पास रखता था, खाली पेन देता था, ताकि पूरा इंश्योर करने के लिए पेन वापस आ जाए। पूरा पेन दूंगा तो व्यक्ति कई बार अपनी जेब में रख लेता है, तो पेन का ढक्कन अपने पास रखे, खाली पेन देगा, पेन भी वापस आ जाएगा। बाद में इस व्यक्ति ने विवाह किया, तो ये तो उसका मित्र उसको मिलने गया, तो बड़ा अच्छा घर, फर्स्ट क्लास फर्नीचर वगैरह सब। तो हैरान हो गए, तुम इतना कंजूस व्यक्ति, इतना सब कैसे है? तो उसने बोला, ये माता जी की कृपा है। इनको मैं मना नहीं कर पाया। बोला अच्छा, मैंने भी गलती कर दी, अगर मैं भी तुम्हारे सामने एक सुंदर स्त्री बन के आता, वो पूरा पेन देते हैं मुझे। तो कहने का अर्थ क्या है कि पुरुष और स्त्री के बीच में इतना आकर्षण है कि हम सारे, फिर सारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, फिर हम उस पूरे जंजाल में फंसते चले जाते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण है, और ये जो आकर्षण है, तो कई बारी पुरुष और स्त्री एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले हमने डिस्कवरी चैनल पे देखा था कि जंगल में हाथियों को दिखाया जा रहा था। दिखा रहा है कि हाथी है, बड़ा मोटा ताजा तकड़ा हाथी है, उसने एक पेड़ की बहुत बड़ी शाखा को तोड़ दिया, उठा के फेंक दिया, और फिर वो देखता है हथनियों की तरफ कि हथनियों को प्रभावित करने के लिए, और सब हथनियाँ एक दूसरे को देख रही, क्या बात है, क्या दम है इसमें। फिर थोड़ा और दिखाने के लिए भी और भी शक्ति है, पूरा पेड़ की जड़ पे पूरा सूंड घुमा के पेड़ को भी उखाड़ के फेंक दिया, है ना, प्रभावित करने के लिए। तो सब योनियों में ये प्रवृत्ति है कि हम जो अपोजिट जेंडर है उसको हम प्रभावित कर सके, उसके ध्यान को आकर्षित कर सके। और हमारा पूरा सोशल मीडिया, पूरा आसपास के बिलबोर्ड्स, सब हमारी इस चेतना को और आगे बढ़ाते हैं, हमारी चेतना को और दूषित करते हैं। हम सबका ये अनुभव है। तो इस प्रकार की चेतना के साथ बहुत कठिन है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, बहुत बड़ा संघर्ष है। तो मैथुन की इच्छा स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में रहती है। सूक्ष्म रूप में पूजा लाभ प्रतिष्ठा, स्थूल रूप में देह का सुख तथा कथित। तो ये बहुत बड़ा बाधा है। क्यों बाधा है? क्योंकि थोड़ा इसमें हम जाएंगे तत्व में कि ये इतना स्ट्रॉन्ग आकर्षण क्यों है पुरुष और स्त्री के बीच में, क्यों है ये? इसका स्रोत क्या है, कहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग आकर्षण आ गया? हम कथा पढ़ते हैं शास्त्रों में ऋषि श्रृंग की, जिनके पिताजी ने जंगल में उनको पाला, और इस ढंग से पाला वो किसी भी स्त्री के संपर्क में ना आए। फिर राजा रोमपाद के राज्य में बारिश नहीं होती, उनको बताया जाता कि ऐसे ऋषि को लेकर आइए, तो वो वैश्याओं को भेजते हैं। पहली बार वो किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं, फिर भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं ना।
तो कहाँ से इसका सोर्स क्या है, क्यों इतना प्रबल आकर्षण है? तो देखिए भागवतम के पहले स्कंद का पहला श्लोक ही क्या है, पहले देखा, जन्मादि अस्य यथा अन्वयादि तृतश्चार्तेषु अभिज्ञा स्वराट। जन्मादि अस्य, सब कारणों के कारण कौन है? कृष्ण है। ओके, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस श्लोक के ऊपर 5 टीकाएं दी हैं। उसमें से 2 टीकाओं में उन्होंने इसका वर्णन किया है, जन्मादि यस्य यथा। जन्मादि बोले जन्म आदि यस्य, आदि यानी कि आदि रस। बताते हैं जैसे भीमसेन को हम भीम बोलते हैं कई बारी, तो आदि रस को आदि करके बोला जा रहा है। तो ये आदि रस आया है। आदि रस क्या है? कृष्ण का माधुर्य रस, राधा और कृष्ण के बीच का संबंध है ना। सभी श्रृंगार रस सबसे ऊंचा रस है। तो ये जो रस है, भगवान रस के भंडार हैं। रसो वै सह, है ना, वो रस राज है ना। तो रसो वै सह सोयम लब्ध्वा आनंदम भवति। और जीव को भी आनंद चाहिए। हम सबका स्वरूप है आनंद में अभ्यासत, हमें आनंद चाहिए। आनंद कैसे मिलेगा? जब भगवान के साथ हम रस का आस्वादन करेंगे, है ना। स्वयं रस लब्ध्वा आनंदम भवति। बिना रस के जीवन में आनंद नहीं है। और ये रस कहां से आता है? डिवोशनल सर्विस। हाँ जी, हाँ, रस कहां से आएगा? अगर हम अभी आम रस पीते हैं और अनार का रस पीते हैं और पाइनएप्पल रस पीते हैं, तो रस के लिए कोई फ्रूट चाहिए, है ना। तो वो फ्रूट क्या है? वो फल क्या है? संबंध। तो कृष्ण का जब जीव के साथ संबंध होता है तो उसको फिर रस की प्राप्ति होती है। और वो रस का जब हम आस्वादन करते हैं तो आनंद प्राप्त होता है। और जैसे ही संबंध को हम भूलते हैं, हमारा स्वरूप तो बदला नहीं, भगवान हमारे साथ संबंध को नहीं भूले, हम भूल गए। तो जैसे हम संबंध को भूलते हैं, रस चला जाता है, लेकिन आनंद तो चाहिए। तो फिर हम विकृत रस को ढूंढते हैं। ये जो संसार है, भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत की विकृत छाया है। तो इसमें हम विकृत रस ढूंढते हैं, भौतिक जीवन में रस ढूंढते हैं। और जो भौतिक आदि रस का, श्रृंगार रस का विकृत रूप क्या है? पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण। ये विकृत छाया है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। ये इतना स्ट्रांग है, ये इतना प्रबल है, तो असली जो संबंध है वो कितना प्रबल होगा, आप सोचिए। ये तो विकृत रूप है, विकृत छाया इतनी प्रबल है। जन्मों जन्मों अनादि जन्म हमने निकाल दिए, अनंत जन्म निकाल दिए इसी एक गलत रस में फंसे होने के कारण। तो जो इसका सही रूप होगा वो कितना शक्तिशाली होगा, आप सोचिए। तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इस रस को पाने के लिए, असली आनंद को पाने के लिए। ये जो विकृत रस है, ये हमारे दुख का कारण है, दुख का कारण है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक गन्ने में और एक बांस को, एक टुकड़े को। किसी मूर्ख व्यक्ति गन्ना और बांस एक जैसा लगता है, बोले गन्ने का मौसम चल रहा है, इस बार गन्ने की खेती हो रही है, चलो, और बांस को उठा के चबाने लगे, क्या हालत होगी उसकी? खून ही खून निकल आएगा, बुरी हालत हो जाएगी। तो ये हम सबकी हालत है। हम सोचते हैं पूरे संसार में इस ढंग से पब्लिसाइज किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स की जा रही हैं कि जो मैथुन का सुख है सर्वोत्तम सुख है, और जीव उससे आकर्षित होते भागता है, तो फिर उसको क्या दुख? दुख ही दुख है। अगर ये सर्वोत्तम सुख होता तो इस संसार को सुखालय कहा जाता, क्योंकि हर किसी के लिए उपलब्ध है, हर योनि में उपलब्ध है ना। तो इस संसार को दुखालय क्यों कहा गया है? और क्यों दुख है? क्योंकि ये विकृत रस है। ये जो है कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम द्वेष की अभिव्यक्ति है। जो मैथुन, पुरुष स्त्री के बीच में मैथुन करते हैं भोग की इच्छा से, ये कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम द्वेष की अभिव्यक्ति है। और कृष्ण से द्वेष करके हम आनंद में रहने की इच्छा करेंगे तो मूर्खता है। रह सकते हैं कृष्ण से द्वेष करके आनंद में? संभव ही नहीं है ना। समझ रहे हैं बात को? हम थोड़ा रूट में जाने का प्रयास कर रहे हैं, और घबराइए मत। प्रभुपाद जी ने हमें इतना सुंदर सिस्टम दिया है कि प्रभुपाद ने जो कृष्णा भावनामृत आंदोलन हमें दिया है, ये काम वासना को प्रेम में बदलने के लिए है ना। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, शुद्ध प्रेम दूध के समान है, उसमें कुछ खट्टा लग जाए तो वो दही बन जाता है। इस संसार में दही को दूध नहीं बना सकते, लेकिन काम को हम प्रेम में बदल सकते हैं कृष्ण भावनामृत से। हरे कृष्णा। तो लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि ये विकृत रूप है। हम दही को ही सब कुछ समझ लें, उसमें तरह तरह के मसाले डाल के इसको टेस्टी बनाने का प्रयास करें, नहीं, इस दही को दूध बनाना है, ओरिजिनल में वापस लाना है। ला सकते हैं, मनुष्य जीवन इसीलिए है ना। और हमारी साधना भक्ति का उद्देश्य भी यही है। ओके, इसीलिए भगवान ऋषभ देव कहते हैं पराभावस्तावद
पराभावस्तावत यावत अबोध जातम। ये मनुष्य जीवन की हार हो जाएगी अगर उसने इस ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं की कि असली आनंद क्या है, असली रस क्या है। यावत क्रिया तावत इदम मनो में कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। जैसे जैसे जो जो वो कर्म करेगा उसके ऊपर, उसके मन के ऊपर छाप पड़ जाएगी, और यही जो छाप है ये शरीर को बंधन का कारण बनती है। तो इस शरीर के बंधन से कैसे लगेंगे? ऋषभ भगवान कहते हैं प्रीति न यावत मई वासुदेव ना मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक मुझ वासुदेव से आपका प्रेम नहीं होगा, इस देह से आपका संबंध छूटेगा नहीं। ये देह का मतलब है, इसके मतलब हमारे अंदर मैथुन की इच्छा है। कोई भी योनि की देह है, इसका मतलब काम वासना, कृष्ण से द्वेष की इच्छा है। तो जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं होगा, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। और कृष्ण से प्रेम करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जिसने इसके लिए प्रयास नहीं किया उसका जीवन हारा हुआ है। चाहे इस संसार में बहुत बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, वो जिसने आत्म जिज्ञासा नहीं की, जिसने इस प्रेम को पाने का प्रयास नहीं किया, उसके जीवन में क्या है? बहुत बड़ी हार है। तो हमने हारना नहीं है, हमने तो जीतना है। हम जो श्रीमद् भागवतम की शरण लेते हैं, हम बोले नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयेत। ये हमें जय दिलाने के लिए है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से विजय प्राप्त करवाने के लिए है श्रीमद् भागवतम। तो हमारे पास सब हथियार है, बस हमने उसको अपने जीवन में उतारना है। तो इस मनुष्य जीवन में हमें जानना चाहिए कि मुझे असली रस पाना है, आनंद में मुझे आनंद पाना कोई गलत हमारी डिमांड नहीं है, लेकिन कहाँ पाना ये हमें मालूम होना चाहिए। तो 1986 में परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने एक अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी शिला प्रभुपाद जी को, और बहुत ही मार्मिक ये व्यास पूजा ऑफरिंग है, शायद आपने पहले भी सुनी हो। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कह रहे हैं कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, ऐसा वो सोच रहे हैं, है ना। और ये हमें बताएंगे कि एक साधक को किस प्रकार की मंशा रखनी चाहिए। बोले आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, कल मुझे प्रभुपाद से मिलना होगा, तो मैं प्रभुपाद को क्या बोलूँगा और प्रभुपाद मुझसे क्या कहेंगे। तो मैं प्रभुपाद को कहूँगा, प्रभुपाद मैं घनश्याम दास, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का पहले नाम घनश्याम दास था, जब ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने आपके कई पुस्तकों का वितरण किया लाइब्रेरीज में जाकर। मैं वही घनश्याम दास जो बहुत अच्छा पुस्तक वितरण था। श्रीला प्रभुपाद कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन क्या आपने मेरे लिए मैथुन की इच्छा का त्याग कर दिया? तो फिर मैं दोबारा कहूँगा, प्रभुपाद मैंने कभी कोई भी नियम नहीं तोड़े, मैंने हमेशा प्रतिदिन 16 माला का जप किया है, जब से मैं इस आंदोलन में आया हूँ एक बार भी मैंने मिस नहीं किया। प्रभुपाद बोलेंगे बहुत अच्छा, लेकिन क्या आपने वो मैथुन की इच्छा को त्यागा है? फिर बोलेंगे प्रभुपाद मैंने हर एकादशी में पूरा व्रत रखता था, मैं तो जल भी नहीं लेता था, खाना भी नहीं खाता था, पूरा जीवन एक भक्त की तरह मैंने ऐसे एकादशी रखी। प्रभुपाद कहते बहुत अच्छा, लेकिन क्या आपने मेरे लिए मैथुन की इच्छा को त्याग दिया? ये बोले प्रभुपाद मैंने पूरा जीवन जब से भक्ति में आया हूं हमेशा 6 घंटे से कम सोया हूं प्रतिदिन। प्रभु बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने मेरे लिए मैथुन की इच्छा को त्याग दिया? फिर बोले प्रभुपाद मैंने आपकी सारी पुस्तकें पढ़ी बहुत ही श्रद्धा के साथ, और कई देशों में उनको मैं बांट रहा हूं, जहां कागज भी नहीं मिलता प्रिंटिंग के लिए, वहां मैं प्रिंट करा कर उनको बांट रहा हूं, इतना बड़ा काम। मेरे पुत्र बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने मैथुन की इच्छा को त्याग दिया? प्रभुपाद मैंने जीबीसी की जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है, 50 देशों का मैं जीबीसी रहा, और ऐसे देश जो बहुत गरीब थे। प्रभुपाद बोले बहुत अच्छा, लेकिन आपकी मैथुन इच्छा का क्या हुआ? प्रभुपाद मैंने बहुत से राजनेताओं को, बड़े बड़े लोगों को मैंने कल्टीवेट किया। प्रभुपाद क्या आप मैथुन इच्छा से मुक्त हो गए? प्रभुपाद मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन से मंदिर बनाए, कौन कौन से फार्म प्रोजेक्ट्स किए अलग अलग देशों में। ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी मैथुन इच्छा का क्या होगा? तो इस प्रकार से मैंने भक्त बनाए, बहुत से मंदिर खोले। फिर मैंने देखा कि प्रभुपाद की जो वाणी है, और जैसे कहते हैं ये लिख रहे हैं इवन मोर पेनिट्रेटिंग, जिस प्रकार से मुझे वो डांटने लगे। उन्होंने बताया दिस इज ऑल बाय कृष्णास मर्सी नॉट आवर्स,
ये सब कृष्ण की कृपा से हुआ है। हमें नहीं सोचा ये इतने बड़े काम मैंने कर दिए, इतनी पुस्तकें बांट दी, इतने मंदिर खोल दिए, मैं इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर दी, ये तो कृष्ण की कृपा से हो गया, आपके कारण नहीं हुआ। और आज जो प्रभुपाद ने मुझे डांटा, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो प्रभुपाद आप मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे अपनी मैथुन इच्छा को त्यागना है, स्थूल और सूक्ष्म, तब आप वास्तव में प्रसन्न होंगे, तब मैं इस योग्य बनूंगा कि आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे, है ना? ये है। तो हम कई बारी भक्ति में सेवा भी करते हैं, हमारा यही रहता है ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है, ऐसे है छा जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन एक भक्त को हमेशा आत्मावलोकन करना चाहिए, क्या मेरी सूक्ष्म इच्छाएं हैं, क्या मेरी स्थूल इच्छाएं हैं, है ना? अल्टीमेटली गुरु शिष्य से ये चाहते हैं। ये सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये सब मीन्स हैं, एंड नहीं है। एंड क्या है कि मैं इस योग्य बन जाऊं कि भगवान की लीला में प्रवेश कर सकूं। अगर मैथुन की इच्छा है मतलब भगवान के प्रति द्वेष, तो द्वेषी व्यक्ति भगवान की रासलीला में प्रवेश करेगा और फिर से द्वेष शुरू कर लेगा। यार ऐसा क्या है, ये क्यों सेंटर में, मुझे सेंटर में होना चाहिए क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है सेंटर में रहने की, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो बात मचा दूंगा वहाँ पे मैं। सब बोले कहाँ से आ गया ये व्यक्ति तो अभी तक तो गोलोक धाम में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, कहाँ से आ गया, नया जीव कहाँ से आया। तो वहाँ जाने के लिए अगर हमें योग्य बनना है तो ये असली अर्थ है। हम जब दीक्षा लेते हैं ये केवल बाहरी रूप से उपलब्धियों के लिए नहीं है, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए है। और ये जो हमारा प्रोसेस है ये बहुत शक्तिशाली है, बड़ी आसानी से हमें शुद्ध कर सकता है, केवल हमने इसको गंभीरता से स्वीकार करना है। तो जैसे इस संसार में जितने भी जीव हैं काम के बाणों से पीड़ित हैं, तो मदन, काम को मदन कहा जाता है, उसके 5 बाण होते हैं, है ना? तो 5 बाण बताते हैं कि पहला बाण क्या होता है, हर्षण। हम देखते हैं तो हमें हर्ष होता है, किसी इंद्रिय विषय को, इंद्रिय विषयों को देखते हैं तो बड़ा हर्ष होता है, रोमांच होता है, हमें लगता है कि हमारा सुख बढ़ेगा इससे, है ना? हर्ष के बाद होता है रोचन, उसमें रुचि उत्पन्न होती है। फिर होता है मोहन, हम मोहित हो जाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं भाता। फिर होता है शोषण, बिल्कुल उसके वश में होते हैं, हमारा शोषण होना शुरू हो जाता है। और फिर होता है मरण, अपना जीवन त्यागते हैं, है ना? आप अजामिल के प्रसंग में देख सकते हैं, अजामिल ने उन वैश्या को देखा, हर्षण, रोचन, मोहन, है ना, फिर शोषण और फिर मरण, है ना? लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो असली कामदेव है ना? जिन लोगों ने गायत्री मंत्र स्वीकार किया हुआ है तो हम काम गायत्री का जप करते हैं। तो काम गायत्री का अर्थ क्या है कि जो कृष्ण है वो वास्तविक दिव्य कामदेव हैं। तो कृष्ण के पास भी पुष्प बाणाएं, 5 पुष्प बाण हैं। तो जीव को अगर बाणों से घायल ही होना है तो मदन के बाणों से, कामदेव के बाणों से घायल नहीं होना, हमने कृष्ण के बाणों से घायल होना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण दिव्य कामदेव है, तो कृष्ण के बाण, 5 बाण क्या हैं, उनका सुंदर रूप, है ना? भगवान का बहुत सुंदर रूप है, उसके रूप में बहुत सुंदर भगवान की मुस्कान है, घनश्याम रूप है, उसके ऊपर जो पीताम्बर है वो बिल्कुल जैसे बिजली की तरह चमक रहा है। तो उस रूप से हमने आकर्षित होना है। जो कृष्ण का नामृत में वर्णन आता है, मधुरम मधुरम वपुवस्य विभो, कि मधुरम मधुरम, भगवान का जो शरीर है बहुत मधुर है। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, भगवान का जो मुख है वो बहुत मधुर है। मधुस्मिता मधुगंधी एतदोहो, भगवान का जो स्माइल है, मुस्कान है, वो बहुत मधु है और मधुगंधी, उसमें से सुगंध निकल रही है ना? मधुरम 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 मधुरम। हम लोग कई बार मुस्कुराते हैं, मुंह खोलते हैं तो बदबू आ सकती है, लेकिन भगवान की मुस्कान से सुगंध आती है। तो गोपियां कहती हैं भगवान की जब हम वेणु सुनते हैं तो उससे हम इतने आकर्षित हो जाते हैं, हम भागना नहीं चाहते। तो हो सकता है हमने कानों के छिद्रों को बंद कर दें कि हम भगवान की वेणु ध्वनि ना सुने, लेकिन जब भगवान के सुंदर मुस्कुराते चेहरे को देखते हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। भगवान हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। भगवान जब सो रहे होते हैं तब भी मुस्कुराते हैं। हम लोग कई बार मेट्रो में जा रहे होते हैं, गाड़ी में हम सोते होते हैं तो फोटो खींचनी चाहिए हमारी, है ना? कैसा चेहरा होता है हमारा, लेकिन भगवान मुस्कुरा भी रहे, सो भी रहे हैं
तो मुस्कुरा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी हैं तो अर्जुन ने बोला मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मुस्कुराते हुए ले गए, है ना, आराम से, है ना। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हैं, भगवान की आंखों फिर भी कमल नयन बताया गया, भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान आनंद स्वरूप है ना, भगवान आनंद से भरे हुए हैं, आनंद घन है, तो उनसे हम आकर्षित होंगे तो हमें भी आनंद मिलेगा। ओके, तो पहला भगवान का जो पुष्प बाण है वो क्या है? उनका रूप, फिर उनकी गंध, है ना, भगवान से सुंदर गंध निकलती है ना, फिर उनका स्पर्श, भगवान की दिव्य देह हम कल्पना में नहीं कर सकते, कितने कोमल हैं भगवान के चरण कमल, कितने कोमल हैं। ये गोपियां कहते हैं कि आप अपने वक्षस्थल पे रखेंगी तो आपको चरण कमल कहीं चोट ना लग जाए, है ना। कभी आनंद वृंदावन चंपू में बताते हैं कि भगवान जब यशोदा के यहाँ प्रकट हुए तो इतने कोमल थे, जैसे हम दूध को उबालते हैं, दूध की छाग निकलती है ना, उसको पकड़ सकते हैं हम नहीं, इतने ऐसे कोमल, ऐसा कोमल शरीर है भगवान का, और साथ में बलवान भी है। इस संसार में कोई कोमल होगा तो बलवान नहीं होगा, तो सॉफ्ट भी हैं और स्ट्रांग भी हैं। तो क्या हुआ? रूप है, स्पर्श है, गंध है और शब्द। भगवान की वाणी इतनी मधुर है, और फिर भगवान जब वेणु बजाते हैं उसका प्रभाव हम जानते हैं, तो कितना प्रभाव पड़ता है भगवान की वेणु का। और क्या हुआ? रूप, स्पर्श, गंध और स्वाद, है ना। भगवान का जो अधरामृत है, जो उनका उच्चिष्ट है, उसको हम सब जानते हैं, उसमें कितना स्वाद है। तो हमने भगवान जो दिव्य कामदेव हैं उनके इन 5 बाणों से घायल होना है, ये हमारे जीवन की सिद्धि है, तब हम उस कामदेव से बच जाएंगे। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि मदन मोहन से आकर्षित होना है। एक बारी मदन और उनकी भार्या रति ने सोचा इस संसार में सब लोग हमसे पीड़ित हैं, ये कृष्ण को छोड़कर, और कृष्ण द्वारका में है, 16,108 इतनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, चंद्रमुखी हैं, कमल नयनी हैं, इतनी सुंदर हैं, क्यों नहीं कृष्ण से आकर्षित होते? रोज सुबह मुर्गे की पहली उससे वो जाग जाते हैं, ऐसा कैसा कोई व्यक्ति हो सकता है? चलो इनको हम घायल करने जाते हैं। तो कामदेव और रति जाते हैं कृष्ण के पास, लेकिन जैसे कामदेव कृष्ण का दर्शन करते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। कृष्ण इतने सुंदर। और फिर भगवान के चरण कमलों में हम देखते हैं कि भगवान के चरण कमलों में एक मछली का निशान है। वो मछली का निशान कहाँ से आया? जो कामदेव हैं जहाँ भी जाते हैं झंडा लेके जाते हैं कि पताका मेरा जीत हो गई ना, तो झंडे पे क्या है? मछली का निशान है। तो जब कामदेव मूर्छित हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उस झंडे के ऊपर पाँव रखा, तो फिर मछली का निशान भगवान के चरण कमलों में आया। तो इसलिए उनको बोला जाता है मदन मोहन, जिन्होंने कामदेव को भी मोहित कर लिया। तो हमने आकर्षित होना है, इसीलिए जो हम संबंध ज्ञान स्थापित होगा, मदन मोहन की शरण लेते हैं। जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदामोजो राधा मदन मोहनो, कि जयताम सुरतो पंगो, कि मैं तो बहुत ही पंगु क्या हूँ, बिल्कुल लंगड़ा हूँ। मम मंद मतिर्गति, मेरी मति भी बहुत मंद है, लेकिन मैं आपके चरण कमलों में शरण ग्रहण कर रहा हूँ। ओके, तो मदन मोहन जी की शरण लेंगे तो वो हमारे मदन को मोहेंगे, और जो असली मदन है वो कामदेव, जो दिव्य कामदेव कृष्ण हैं, उनसे हम मोहित होंगे। तो एक बार कृष्ण से आकर्षित हो गए तो संसार की किसी वस्तु से हम आकर्षित नहीं होंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण से आकर्षित हों, तो फिर इस काम को हम प्रेम में बदल सकते हैं। तो इसको बड़े उत्साह से प्रयास करना चाहिए। तो पहले कैसे हम काम को प्रेम में बदल सकते हैं? तो सबसे पहले हम श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करें। श्रीमद् भागवतम हमने बताया ऐसा ग्रंथ है जो हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाएगा। जितना हम कृष्ण के विषय में सुनेंगे उतना हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाएं। हम जानते हैं सुखदेव गोस्वामी जी बचपन से ही मुक्त जीव थे, वो माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे कि माया से भयभीत थे। भगवान ने द्वारका से आके उनको आश्वासन दिया, आप माया से प्रभावित नहीं होंगे, बाहर तो आइए। और बाहर आते ही नग्न अवस्था में तुरंत भाग गए। भगवान के आश्वासन के बाद भी नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेना। भगवान आश्वासन दे रहे हैं तब भी रिस्क नहीं, भाग गए। और रास्ते में भाग रहे हैं, पीछे पीछे व्यासदेव भाग रहे हैं, पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं। और रास्ते में एक तालाब में स्त्रियां नग्न स्नान कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए, 16 साल के तरुण। और जैसे व्यासदेव पीछे भागते हुए आए, स्त्रियां बड़ी कॉन्शियस हो गई, उन्होंने शरीर को ढक लिया।
व्यास ने पूछा ये क्या चक्कर है, 16 साल का जवान मेरा लड़का यहाँ से भागा, वो नग्न अवस्था में, तब आपको कोई शर्म नहीं आई? मैं आपके पिता के समान हूँ, मेरे को देखो आपको शर्म आ गई? बोले हाँ, उनकी नज़र में कोई दोष दृष्टि ही नहीं है, वो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं करते, है ना, ऐसे भाग रहे हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी व्यास जी उनको बुलाना चाहते थे, क्या किया, अपने शिष्यों को भेजा, कुछ भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करो। और जब उन्होंने भगवान की सुंदरता, भगवान की दया सुनी, तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी आकर्षित हो गए कृष्ण से, है ना। आत्मा रमश्च मुन्यो निर्ग्रंथो अपनी उरुक्रम कुर्वन्ति हेतु की भक्ति इत्थम भूता गुणों हरि। भगवान के गुण इतने आकर्षक हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्मा राम भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की हम शरण लेंगे, इसको नियमित रूप से पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, तो कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। श्रीमद् भागवतम हमें बुद्धि प्रदान करेगा। भागवतम पढ़ेंगे तो हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट होगा। ये सारी गलतफहमियां क्यों हैं? संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है। हम सोचते हैं मैं आवे शरीर हूँ, जब ये शरीर हूँ तो पुरुष को स्त्री आकर्षित करेगी, स्त्री को पुरुष आकर्षित करेगा। लेकिन मैं जान जाऊँगा कि वो स्त्री के अंदर और मेरे अंदर भी एक ही जीवात्मा है, लोग सब भगवान के अंश है, दोनों ही प्रकृति हैं, पुरुष तो कोई है ही नहीं, तो क्या एंजॉय करेंगे? यहाँ तो एक दूसरे को दुखी देंगे। तो इसलिए बताया गया है कि जो इस मनुष्य जीवन में कैसे इस मैथुन की इच्छा से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, उसके लिए वर्णाश्रम बनाया गया था ना। अब है इच्छा तो क्या किया गया? ब्रह्मचारी आश्रम इज टू लर्न, गृहस्थ आश्रम इज टू अर्न, वानप्रस्थ इज टू रिटर्न एंड संन्यास इज टू रिटर्न। ठीक है ना। तो पहले क्या करना है? ब्रह्मचारी आश्रम में टू लर्न, सीखना है भैया क्या है, संबंध ज्ञान क्या है। उसके बाद वो आजीवन ब्रह्मचारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है, कुछ समय के लिए गृहस्थ आश्रम में जाए, खाली 25 साल के लिए। ब्रह्मचारी आश्रम में हमने मैथुन की इच्छा को कंट्रोल करना है, गृहस्थ आश्रम में रेगुलेट करना है, और वानप्रस्थ और संन्यास में ट्रांसेंड करना है, इससे ऊपर उठ जाना है। तो पूरा वर्णाश्रम बहुत साइंटिफिक है। और ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये वर्णाश्रम का प्रशिक्षण पूरे मानव समाज के लिए सबसे बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी कृपा किसी जीव पे संसार में क्या कर सकते हैं? उसको मैथुन की भावना से उसको मुक्त कर दें तो भगवत धाम चला जाएगा। ये सबसे बड़ी कृपा है, उसके लिए वर्णाश्रम है। तो उसके लिए हमने सही ढंग से पालन करना है। हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो इस इच्छा को नियमित करें, ब्रह्मचारी आश्रम में हैं तो इसको कंट्रोल करें, वानप्रस्थ और संन्यास में हैं तो इससे ऊपर उठने का प्रयास करें। प्रभुपाद बोलते हैं वानप्रस्थ का मतलब है अब अगले जीवन की तैयारी शुरू करो। इस जीवन में सुख भर भूल जाओ, अगला जीवन कैसे अच्छा करना उसके बारे में सोचो। तो ये पूरा साइंटिफिक सिस्टम है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहेंगे, उन्नत भक्तों के प्रसंग पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि काम करती रहेगी, हम अपने आप को मोहित होने से बचा पाएंगे। ठीक है, भागवतम। दूसरा है हरि नाम, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगर हम हरि नाम का जब बहुत ध्यान पूर्वक करते हैं तो हरिदास ठाकुर जी की कृपा से हम पुरुष या स्त्री के आकर्षण से बचे रहेंगे, अन्यथा किसी भी समय हम गिर सकते हैं, माया इतनी प्रबल है। तो हरि नाम का जब बहुत ध्यान पूर्वक, तब हरिदास ठाकुर की कृपा हमें बचाएगी। हम हरि नाम का जब अपराध पूर्वक कर रहे हैं तो बहुत कठिन है ना। फिर हमेशा चांसेस बने रहेंगे, आकर्षण कम नहीं होगा। होता क्या, हम सही ढंग से जप करते नहीं, आकर्षण बने हुए हैं तो हमारी हरिनाम में श्रद्धा कम हो जाती है। इतने सालों से जप कर रहे हैं जी, काम वासनाएं वैसे बनी हुई हैं, क्या हमने सही ढंग से दवाई ली? दवाई तो सही ढंग से ली नहीं तो काम कैसे करेगी? तो ये श्रीमद् भागवतम और हरिनाम की शरण लें, और सबसे चीज़ों हमें बचाएगी जो हरि गुरु और वैष्णव की सेवा हमें बचाएगी। तो वैष्णव की हम सेवा करें, उनकी कृपा से ही हम इस काम वासनाओं से मुक्ति पा पाएंगे। अपने मन को हमेशा हम कृष्ण में लीन करने का प्रयास करें, एब्जॉर्ब करने का प्रयास करें। बुद्धिमान मनुष्य को हमेशा सोचता रहना चाहिए इस समय मेरा मन कहाँ जा रहा है, इस समय मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, संसार की उल्टे सीधे आकर्षणों में या कृष्ण के नाम गुण लीलाओं की चर्चा में या उनकी महिमा में, है ना। ये हमारे पास जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, हमारी शक्ति है। इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस समय मैं कहाँ इसको लगा रहा हूँ। तो मुझे कहाँ लगाना चाहिए? जहाँ जहाँ ध्यान इधर भटके वापस पकड़ लेना। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा ना अन्य गामिना।
चेतना भागेगी इधर उधर, उसको पकड़ के लाए, फिर भागेगी, फिर पकड़ के लाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भीष्म पितामह जी, भीष्म पितामह जी कौरवों के बीच में रहते थे। कितने बड़े बड़े महाजन थे उनके आसपास, कर्ण, दुशासन, शकुनी, धृतराष्ट्र, क्या उल्टी सीधी बातें करते रहते थे, कितनी निंदा करते रहते थे। उन सब के बीच में भी कितना अपना ध्यान केंद्रित करते थे कृष्ण के ऊपर। युद्ध भूमि में भी इधर उधर सब मार काट हो रही है, लेकिन उसमें भी भगवान के साथ वो वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं, है ना। तो ये है एब्जॉर्प्शन, है ना। तो हम कहाँ जाते हैं, काम धंधे में जाते हैं, आसपास का वातावरण खराब है, लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे, प्रभुपाद जी एक लेटर में तमालकृष्ण गोस्वामी को बता रहे हैं कि हालांकि हम अज्ञानता के जगत में हैं, लेकिन अपने आप को हम अलर्ट रखेंगे, तैनात रखेंगे, तो तमोगुण से बचे रहेंगे। तो अपने आप को अलर्ट रखें कि मेरा ध्यान कहाँ भटक रहा है। तो हरिनाम की शरण लें, अपनी चेतना का ध्यान रखें, भागवतम की शरण लें, वैष्णवों की सेवा करें और पूरे आश्वस्त रहें कि कृष्ण मेरी रक्षा जरूर करेंगे। कृष्ण कोई नेगेटिव माइंडेड व्यक्ति नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करते, ये नहीं देख रहे अभी फिसला अभी पकड़ता हूँ, ऐसा नहीं। कृष्ण हमेशा कृपा करने को तैयार है ना। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने अर्जुन को बोला पहले आप रथ से उतरो, है ना। फिर जैसे कृष्ण रथ से उतरे तो क्या हुआ, पूरा रथ में विस्फोट हो गया, अर्जुन हैरान हो गया, सब क्या हुआ। फिर कृष्ण ने बताया इतने बड़े बड़े धुरंधरों ने तीर छोड़े थे, कर्ण ने, द्रोणाचार्य जी ने, भीष्म पितामह ने, वो सारे इतने ज़बरदस्त तीर थे, अब तुरंत समाप्त हो सकते थे, लेकिन मेरी कृपा से उन्होंने अपना प्रभाव नहीं दिखाया। इसी ढंग से हम इस संसार में रहते हैं, चारों तरफ से काम वासनाओं के तीर छोड़े जा रहे हैं, है ना। और हम भी पूरा प्रयास करें अभी गिरें। हम गलती करने में चूकते नहीं हैं, हमारी आदत है गलती करना। हम ही पूरा प्रयास करें अभी छोड़ दें भक्ति, ये तो श्रील प्रभुपाद गुरु और कृष्ण की कृपा है कि उन्होंने हमें रोक के रखा हुआ है ना। अगर उनकी कृपा ना हो तो कहीं हमारी विकेट उठ चुकी है पहले ही। हम तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, उनकी कृपा से टिके हुए हैं, लेकिन वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। प्रभुपाद जी लिखते हैं बार बार गलती करेंगे, फिर कृष्ण सोचेंगे ये अब ये सिंसियर नहीं है ना, इसको सबक सिखाना चाहिए। तो इसलिए हम सावधान रहें। सो ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ कृष्ण एंड बी कॉशियस ऑफ माया। कृष्ण के लिए कृष्ण भावना भावित रहे, कृष्ण का कॉन्शियस रहें और माया से बच के रहें। माया का मतलब कृष्ण को भूलना, तो हमेशा कृष्ण का स्मरण करें, कभी कृष्ण को भूलें ना। ये बात हम रखते रहेंगे तो कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, तो हम बचे रहेंगे। तो इसीलिए ये रास्ता है, लेकिन डबल एज, थोड़ा बहुत ही कहते हैं ना तलवार की धार पे चलने के समान है, लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे, हरि नाम भागवतम के श्रवण में रहेंगे, तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसका प्रश्न है, क्वेश्चन और कमेंट्स? किसी कोई प्रश्न है, करेक्शन या टिप्पणी? यस प्रभु जी। हाँ 10:28 संतान उत्पत्ति करने वाले प्रेम के देवता काम हो। माइक में आवाज नहीं आ रही। धर्म वृद्धेषु भूतेषु कामोऽस्मि भरत। हाँ। प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो मैं हूं। हमने बोला ना, गृहस्थ आश्रम में काम को नियमित रूप से करना। नियमित मतलब यही है कि संतान उत्पत्ति के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी कुछ 25 वर्ष तक हमें अलाउड किया हुआ है। तो उसको नियमित रूप से करेंगे तभी हम वानप्रस्थ में उसको छोड़ पाएंगे, है ना। लेकिन अनियंत्रित रूप से करेंगे तो बहुत कठिन है। और कोई? आप बोल रहे हैं कि आसक्ति स्थूल रूप से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में बनी रहेगी, तो सारी सूक्ष्म स्थूल आसक्तियां धीरे धीरे समाप्त होंगी क्रमशः, जितना हम कृष्ण और भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे जैसे यहाँ आसक्ति बढ़ती रहेगी, वहाँ आसक्ति कम होती जाएगी, है ना। एक
ग्रेजुअल प्रोसेस है, अचानक नहीं होगा ये प्रोसेस, साधना तभी। और कोई? हरे हरे कृष्ण। अच्छा प्रश्न है। हम आकर्षित हो रहे हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो अच्छी बात है, ये अच्छा स्टेप है। अपनी बुद्धि से उसको हम नियंत्रित कर रहे हैं और आगे बढ़ते जाएं तो ऐसा हो कि बड़ी स्वाभाविक आकर्षण भी खत्म हो जाए। लेकिन ये वेग बना रहेगा, जब तक ये शरीर है ये वेग रहेगा। तो धीरे धीरे इस वेग को कम करना है, सहन करते 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 और अपना आकर्षण यहाँ बढ़ाते बढ़ाते तो सूक्ष्म रूप से भी समाप्त हो जाएगा। यस पवित्र प्रभु। थैंक यू जी, बहुत ही अच्छी क्लास थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने बताया था भक्ति तीर्थ महाराज जी की व्यास पूजा ऑफरिंग के बारे में, तो उन्होंने अलग अलग सेवाएं जो हैं वो प्रभुपाद जी को समर्पित कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी उनको बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन या एक ही चीज़ पे उनको बता रहे थे कि आपने लस्टी डिज़ायर को त्यागा नहीं। तो भी जैसे हम ये भी जानते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक उसका वेग रहता है, तो फिर इसको रिकंसाइल कैसे कर सकते हैं कि मतलब हमने अपने आप को पूरा एब्जॉर्ब तो रखा सेवा में और शरीर के साथ चला जाएगा, मतलब उसमें कैसे? अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है। जब तक ये शरीर है काम का वेग रहेगा, लेकिन भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज हमें दिखा रहे हैं कि एक साधक का क्या मनोवृत्ति होना चाहिए। एक साधक को अपने उपलब्धियों पे ज़्यादा अहंकार नहीं होना चाहिए। हम ये कह के अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते, शरीर है तो रहेगा ही रहेगा। हमें तो ये प्रयास करना चाहिए क्यों है, इससे भी मुझे मुक्ति पानी है कि ये हमें हमेशा विनम्र रहेगा, हम हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे कि अभी भी बहुत गंदगी है, इसको और साफ़ करना है और साफ़ करना है ना। ये वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अब मुझे ऐसा कोई एग्ज़ाम है जिसमें 100 मार्क्स आ ही नहीं सकते, तो उसका गोल कैसे 100? हाँ देखिए, इसमें 100 मार्क्स का हम प्रयास करते रहेंगे। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाँ में हम जो कमी है मैं पूरी कर दूंगा, जो ठीक है उसको रखूंगा। सो कृष्णा इज वेरी काइंड, बट कृष्णा वांट्स टू सी आवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स। तो भक्ति स्वामी महाराज दिखा रहे हैं कि हमें अपने प्रयासों में थोड़ा भी नहीं चूकना चाहिए। इसको गारंटी नहीं लेना चाहिए कृष्ण बड़े कृपालु हैं, नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु, काम चल जाएगा, हरि बोल ऐसे करके नहीं। ऐसा कोई साधक हुआ है जो कि 100 मार्क्स लाया हो, मतलब ये हमारे बहुत से क्यों नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला कि नित्यानंद प्रभु ने 2 जगह मथाई का उदाहरण किया, प्रभुपाद ने कितने जगह मथाइयों का उदाहरण किया, और हमने प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखा है ना, कितने ही प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद के भजन कर साधन कर मरने जाने है ना, मृत्यु के समय मालूम चलता है किसकी क्या साधना क्या भजन है। तो हम देखा प्रभुपाद जी कितने शिष्यों ने किस ढंग से शरीर छोड़ा, भगवत धाम गए है ना, और उनके भी शिष्यों ने प्रभुपाद के जैसे हमें रोल मॉडल मिल जाएंगे। बहुत रोल मॉडल है। गिरिराज स्वामी महाराज ने बुक लिखी मैनी मून्स, उसमें सबका वर्णन है कैसे कैसे उन भक्तों ने शरीर छोड़ा, जो कि बहुत प्रेरणादायक है ना। थैंक यू जी, प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर मैं बाद में पूछ लूँ। ठीक, थैंक यू। आपका प्रश्न? चलो पीछे दे दीजिए, पीछे पैर पूछे, हाथ खड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया, विभिन्न शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान कृष्ण के रूप के ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब इसमें जैसे वैष्णव पद्धति के अंदर कृष्ण भगवान भी हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी हैं, तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज राइट? किस रूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? कहीं भी, दोनों में कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी, थैंक यू प्रभु जी। जैसे कि कृष्ण के रूप पे आपने बोला ना कि हमें ध्यान लगाना चाहिए, पर जब हम कृष्ण के रूप पर मतलब डीटी को देखते हैं तो कुछ और रूप भी स्मरण में आ जाता है। इतनी मूवीज़ देखी हैं, मतलब मेरा तो बहुत होता है कुछ भी
ध्यान में आ जाता है। तो हम उस टाइम के लिए मन को पकड़ते हैं कि हमें पता है कि हम कृष्ण का दर्शन करने आए हैं, तो उस टाइम के लिए कोई ऐसी प्रेयर कर सकते हैं कि हमें वो चीज़ ध्यान में ही रहे और वो स्मरण में ना आए? हाँ, तो वैसे तो कृष्ण का जो हम दर्शन शुरू करें तो कपिल भगवान बताते हैं कि चरणों से शुरू करें। तो चरणों में जितना ज़्यादा ध्यान देंगे हमारी जो बुद्धि स्थिर होगी और शुद्ध होगी। और रूप गोस्वामी जी की प्रार्थना है कि जिस प्रकार इस संसार में एक युवक का युवती के प्रति, युवती का युवक के प्रति आकर्षण है, ऐसा स्वाभाविक आकर्षण मेरा आपसे हो जाए, है ना। इस प्रकार प्रार्थनाएं कर सकते हैं और धीरे धीरे चरणों से जितना ध्यान चरणों में लगाएंगे, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के चरण कमल हैं भागवतम के पहले 2 स्कंद। तो पहले इनको जितना अच्छे ढंग से हम समझेंगे फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़े। तो चरणों पे ज़्यादा ध्यान लगाइए, फिर आगे बढ़िए धीरे धीरे, तो उससे हमारी बुद्धि स्थिर होती जाएगी, फिर उसका भटकना कम हो जाएगा। ट्राई। थैंक यू। बाहर निकलते ही जो हमारा पुराना नेचर है, जब हम जैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हैं या यहाँ पे जब तक साधु संघ में रहते हैं तब तो ठीक रहता है। जैसे हमारा पुराना इनर नेचर है, कंडीशनिंग है, वो बाहर निकलते ही एनवायरनमेंट इज सो मच पावरफुल दैट इट स्टार्ट अफेक्टिंग एंड द ओल्ड नेचर कम्स आउट अगेन। और उसमें बहुत चांस होता है कि वी कैन बी अगेन इन द रॉन्ग पाथ। तो जी हाउ टू अवॉइड दैट टाइम? मतलब तो बेस्ट है, अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। माया हम पे अटैक करी, हम माया पे अटैक करें। कैसे अटैक करना? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु होई तारे देश। अपने पास हमेशा पुस्तकें रखो, हरिनाम माला रखो, बांटो बस। प्रभुपाद जी कहते हैं इस चेतना में रहोगे तो भौतिक प्रदूषण से बचे रहोगे, नहीं तो भौतिक प्रदूषण में खा जाएगा, है ना। तो यही तरीका है। थैंक यू सो मच। प्रचार ही सार है। ठीक है ना? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी। पहले तो ये कि प्रभु जी जो आपने श्रीला प्रभुपाद और भक्ति स्वामी तीर्थ महाराज की जो लीला बताई, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि माया पे हम कैसे विजय पा सकते हैं। और मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी कि व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी की जो लीला है उसमें बताया जाता है कि वो जब आए इस लोक में तो नव यौवन थे, वो 16 साल के। लेकिन प्रभु जी इस जड़ बुद्धि से समझ नहीं आता कि 16 साल के कैसे माँ के गर्भ में थे वो। मतलब मैं इस प्रश्न को पूछना चाह रहा था अपने शिक्षा गुरु वी चैतन्य प्रभु जी से, तो माया के प्रभाव में पूछ नहीं पाया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये जितनी भी ये व्यक्तित्व हैं, ये भी सब बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं, तो इनके पास अलग शक्तियाँ हैं। जब दिति ने गर्भ धारण किया कश्यप से, और कश्यप ने बोला कि ये जो बच्चे पैदा होंगे बहुत बड़े असुर होंगे, तो बड़ा त्राही त्राही कर देंगे, तो दिति 100 वर्षों तक उसको गर्भ को धारण कर ही देगी। उसको उसने डिलीवर ही नहीं किया, बोले जितना डिले कर सकते हैं करो। तो शक्ति होती थी माताओं के पास, है ना। द्वापर युग था उस समय, शक्ति थी उनके पास। और व्यास देव जी की भार्या थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जो ये परपोर्ट था इसके अंदर स्टार्टिंग में बताया था शिव जी और ब्रह्मा जी के बारे में कि इफ़ दे कैन फॉल डाउन तो व्हाट टू से ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज़। तो आपने जैसे लेक्चर में बताया कि वो हमें दिखा रहे हैं एक तरह से करके, तो प्रभु जी इस चीज़ को कैसे समझे? जैसे कोई ड्रामा करे, फॉर एग्जांपल हिरण्यकशिपु और नरसिंह देव का, तो उसमें हिरण्यकशिपु कोई डिवोटी बने, तो हम उन डिवोटी की बोलें कि ये हिरण्यकशिपु वाला गलत कार्य कर सकते हैं हिरण्यकशिपु के लेवल का, तो और लोगों का क्या होगा फॉर एग्जांपल। तो लेकिन वो तो एक्ट कर रहे हैं, जस्ट एक्टिंग कर रहे हैं हमें सिखाने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे आपने बताया शिव जी या ब्रह्मा जी एक्टिंग करके दिखा रहे हैं हमें, कुछ शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर इस लाइन का मतलब क्या है जो परपोर्ट की जो स्टार्टिंग नहीं, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं ड्रामा कर रहे हैं फिर बाद में बोलने चलो ठीक है सब बढ़िया बढ़िया, चलो बेवकूफ़ बना दिया सबको, ऐसा नहीं है। एक्टिंग कर रहे हैं, भगवान की योग माया से आवृत है, वास्तव में ऐसे भ्रमित हो गए, भ्रमित हुए लेकिन फिर बाहर आ गए।
लेकिन भगवान दिखाना चाहते कि माया कितनी प्रबल है, ये किसी को भी मोहित कर सकती है अगर हम सावधान नहीं रहे तो, है ना। और शिव जी के केस में तो साक्षात कृष्ण से मोहित हुए, लेकिन स्त्री रूप में थे इसलिए बोला चलो शिव जी भी ऐसा हो सकते हैं। दैट वे, ऐसा नहीं कि एक्टिंग कर रहे थे, अंदर से ब्रह्मा जी कुछ नहीं हुआ, वास्तव में वो आकर्षित हो गए थे, वास्तव में निर्लज होकर भागे थे। लेकिन सब उनके ऋषियों ने प्रार्थना की तो तुरंत उस गलत मानसिकता को उन्होंने त्याग दिया। फिर ऐसा नहीं कि बार बार ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। और महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी और विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, ये उस दिन हुआ जिस दिन ब्रह्मा जी ने गर्भोत्कचाई विष्णु से भागवतम नहीं सुनी थी। जिस दिन भागवतम नहीं सुनी थी उस दिन हुआ। अगर जिस दिन भागवतम सुनी थी उसके बाद कभी नहीं हुआ। जो अभी जो कल्प चल रहा है इस कल्प की घटना नहीं है, क्योंकि इस कल्प में उन्होंने चतुर्श्लोकी भागवतम सुनी है और भगवान ने एश्योरेंस दिया आपको कोई रजोगुण नहीं सताएगा, निश्चिंत रहो। तो नहीं हुआ, तो उस दिन जल्दबाजी में होंगे, सुबह सुबह बिना क्लास में आए चले होंगे ऑफिस तो बिना क्लास अटेंड किए अपना कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिया, तो वहाँ मोहित हो गए। जैसे सुबह अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम करके नहीं जाएंगे तो दिक्कत है। तो इस दिन मॉर्निंग प्रोग्राम में थोड़ा बाईपास कर दिया उन्होंने, चलो जल्दबाजी में, तो हो गया कांड। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत प्रश्न है, ले लूँ एक और? ठीक है, पूछिए। प्रभु जी, आपने बताया था कि देवभूति माता जी ने उनको उनके बेटे से प्रश्न पूछा था कि अपनी इंद्रिय तृप्ति को कैसे कंट्रोल करें। इन तृप्ति करके थक तो गई। उन्होंने क्या बताया था भगवान कपिल ने, मतलब भगवान कपिल ने क्या बताया था? तो पूरा ज्ञान तभी से शुरू हुआ, पूरा जो है पूरा सांख्य योग समझाया, ये भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक योग क्या है, कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, भक्तों से आसक्त होकर भक्तों के लक्षण क्या हैं, भक्ति योग क्या है, सब बताया। उसी के पर चल रहा है ना, कैसे जीव फंसता है, ये सब वही तो बता रहे हैं। पिछले 7-8 अध्याय से यही चल रहा है, उसी प्रश्न का उत्तर चल रहा है। ठीक है, हाँ, ब्रह्मा जी शरीर त्यागते हैं। ब्रह्मा जी का शरीर त्यागना उस गलत मानसिकता को त्यागना है। तो जो गलत मानसिकता है वो तीसरे स्कंद में 18वें अध्याय में बताते हैं, वो एक संध्या का रूप ले लेती है। तो असुर लोग उसको एक स्त्री के रूप में देख उससे आकर्षित हो जाते हैं। वो गलत मानसिकता जो होती है वो भी वर्णन है। ठीक है, और किसी का प्रश्न? पीछे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब भी हम प्रचार करते हैं थोड़ा, तो कभी आपने जैसे भी बताया ना कि अगर हमने किसी को लस्टी डिज़ायर से बचा लिया, वो सबसे बड़ा काम होगा हमारे लिए। तो हम प्रचार करते टाइम फोकस यही करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सर्विस में इन्वॉल्व करके रखें, चैंटिंग के बारे में बताएं। कभी ऐसा इंटेंशनल अटेम्प्ट नहीं करा, मतलब अपना बात कर रही हूँ, कभी ऐसा इंटेंशनल अटेम्प्ट नहीं करते कि हम उनको बोले लस्टी डिज़ायर से बाहर आओ या कुछ भी। नहीं, ऐसा बोलना भी नहीं है वो घबरा के भाग जाएगा तो हमने तो ये नहीं करना, हमने तो उसको पॉजिटिव देना है, अपने आप नेगेटिव छूट जाएगा उसका। सो जस्ट गिव हिम होली नेम, गिव हिम सर्विस, गिव हिम प्रसाद, दिल शो इफेक्ट। भक्तों के संग में लाना है, भागवतम श्रवण करवाना है। ये तो कह रहा हूँ, ये हमारा जो वर्णाश्रम ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो इसका इफेक्ट है ना। पीछे माता जी थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आपने वैसे तो सब सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, लेकिन मुझे ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट लगा कि हमारी चेतना हमारी शक्ति है और इसे मैं कहाँ लगा रहा हूँ, इस पर हमें सजग रहना चाहिए। तो प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि एक साधक है तो वो प्रयास करता है कि मेरे से कोई गलती ना हो, बारंबार प्रयास करता है, और जब वो चैंटिंग करता है तो उसको ध्यान आता है कि अरे मेरे से ये गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी, फिर से गलती होती है, फिर से वो प्रयास करता है, फिर से गलती होती है। तो अगर ऐसे बार बार अगर गलती करते रहें तो प्रभु जी, इससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं? मतलब वो साधक कैसे ऊपर उठ सकता है? आप कह रहे हैं कि जब के समय जो मन भागता है
फिर हम उसको पकड़ के लाते नहीं हैं। प्रभु जी, मेरा ये है कि मतलब साधना करना, शास्त्र अध्ययन करना, उसके बाद भी अगर एक साधक गलती करता है और वो फिर प्रायश्चित करता है, मतलब प्रायश्चित इस सेंस में कि मतलब अपना जैसे उधर डायरी लिखना, उसमें लिखना कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, तो फिर अगर ये बार बार इस तरह से होता रहे, बार बार अगर इस तरह से होता रहे, तो वो इससे ऊपर कैसे उठे? हाँ कोई बात नहीं, हम अपने प्रयास नहीं उठेंगे, हम कृपा से ऊपर उठेंगे। बस ऊपर उठने के लिए हाथ खड़े करने पड़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वी कैन ओनली क्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड क्राई, क्राई एंड ट्राई। ठीक है, पश्चाताप करें, फिर से ट्राई करें, फिर से अच्छा प्रयास करें, फिर से गिर के फिर से खड़े हों। जब तक गिर के खड़े हो रहे हैं तो हमें गिरा हुआ नहीं माना जाएगा। गिर के खड़े होने का ही प्रयास नहीं कर रहे, देन इट्स ए फॉल डाउन। तो हम तो अभी चलना सीख रहे हैं भक्ति में, तो ऐसा होगा। लेकिन भगवान ये देख रहे हैं कि कितना ट्राई कर रहे हैं और कितना हृदय से क्राई कर रहे हैं, है ना। यत्न आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेम। यत्न भी करना है और आग्रह भी करना है, ट्राई भी करना है और क्राई भी करना है, तब हम भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। होगा सब कृपा से, हमारे प्रयासों में कोई दम नहीं है। इस कृपा को आकर्षित करने के लिए कॉन्स्टेंटली ट्राई एंड क्राई, यही कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जो अट्रैक्शन होता है ऑपोजिट जेंडर का, वो कौन सी एज से चालू हो जाता है और उसको कैसे उसको रोक सकते हैं? कौन सी एज से चालू होता है? हाँ। जब किशोर अवस्था, टीनेज शुरू होती है ना। टीनेज शुरू होती है तो बचपन, जब बच्चे होते हैं तो हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं होती। तो जब इंद्रियां में शक्ति आनी शुरू होती है तो परमात्मा हमारे हृदय में हमें याद दिलाते हैं कि मैं इंद्रियों को शक्ति दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अपनी पिछले जन्मों की कई काम वासनाएं पूरी करनी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, इसलिए इससे कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, परमात्मा ही अंदर से हमें ट्रेन कर देते हैं, है ना। प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे आपस में ना एक दूसरे को प्रपोज करते, तो एक छोटी बच्ची आके मेरे को बताई थी इसने मेरे को प्रपोज किया, तो उसको कैसे समझाएं कि ये क्या है? हाँ, तो छोटे बच्चे अक्सर आजकल जो वातावरण है वो नकल मारते हैं, तो नकल मारते हैं, बोलते हैं, उनको ये नहीं मालूम है क्या कह रही हूँ या क्या सुन रही हूँ, तो नकल मारते हैं। तो जैसा वातावरण होगा तो भगवान परमात्मा देखेंगे जल्दी प्रोग्रेस कर दें, जल्दी काम वासना जागृत कर देंगे। तो इसलिए वातावरण बहुत दूषित है। उनको कैसे समझा सकते हैं प्रभु जी? उनको फिर छोड़ देना चाहिए कि बस रहने? नहीं, वो अलग बात है कि पेरेंट्स से बात कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कैंटो 2 चैप्टर 2 2212 और श्लोक संख्या है 12 2212। उसमें प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं लास्ट लाइन में, जब तक कोई काम इच्छा से मतलब मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे सेकंड कैंटो से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और दूसरा आपने बताया था मतलब जब तक शरीर रहेगा तब तक काम इच्छा रहेंगी, वेग रहेगा, तो इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं कभी? हाँ, तो कई भक्त लोग इसका गलत मतलब उठाते हैं। मैं ऐसे कई भक्तों को जानता हूँ, दूसरे कैंटो के आगे वो चलते ही नहीं। वो बोलते हैं बस प्रभुपाद ने एक लाइन पकड़ ली है उसको, लेकिन प्रभुपाद ने और भी जगह लिखा है पूरी भागवतम पढ़नी है, पूर्ववर्ती आचार्यों की पुस्तकें पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत पढ़नी है, तो सब है। तो ये बताने के लिए कि धीरे धीरे प्रभुपाद वहाँ पे उस पर ये बता रहे हैं कि जितना चरण कमलों में हम ध्यान देंगे उतना हमारी बुद्धि स्थिर होती जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड कैंटो की ये मतलब है। इसका ये नहीं कि थर्ड कैंटो आगे बढ़ना ही नहीं, उसके हम मंदिर में आते हैं भगवान के चरणों में, देखो उसके भगवान का सुंदर मुख का दर्शन ही ना करें, नहीं तो करना है, सब पढ़ना है। बट ये याद रखना है कि इसको हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे तो उतना हमारा बुद्धि शुद्ध होगी। बट सारे ग्रंथों को पढ़ना है, पूरी भागवतम पढ़नी है, बार बार पढ़नी है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा मुक्त हो जाएंगे तब थर्ड कैंटो में जाएंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं, संभव नहीं है। ये प्रभुपाद लिखते भी ना फिर। यस माता जी। और फिर मतलब पूरा दिन भी अगर मन करता है बैठने के लिए कि माला कर लूं, जैसे आपने बताया 16 माला डेली करनी चाहिए, तो मैं
3 या 4 माला अगर दिन में सुबह जैसे कर लेती हूँ, फिर पूरा दिन मुझे लगता है मैंने बहुत कर लिया, फिर और मन नहीं करता। उसके लिए क्या करूँ कि मन उससे और कोई प्रेरित बात हूँ? नहीं, आप 4 माला तक आ गई, ये बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। आपने पहले कभी सोचा था आप 4 माला करेंगे? कभी नहीं सोचा था ना। आप 4 1 माला से ही स्टार्ट करा था। एक से आप 4 में आएंगे, इतनी बड़ी बात है। तो एक दिन आगे कभी आएगा आप 16-32 भी कर रहे होंगे, चिंता मत कीजिए। ऐसे ही भक्तों के संग में आते रहिए, भक्तों के संग में आते रहिए, सब हो जाएगा, डोंट वरी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी के, प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, प्रभु जी के ऊपर पूरी दिल्ली की, पंजाब की जिम्मेदारी है। मेरे को प्रभु जी से बात करनी होती है तो भी इतना वेट करना पड़ता है। प्रभु जी यहाँ पर आके भागवतम दी, और पूरा लास्ट वीक हम लोग सब यात्रा में थे। प्रभु जी कितना बिजी रहते हैं मैनेजमेंट में, इतनी सर्विसेज में। हम लोग प्रभु जी का बहुत बार आभार प्रकट करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस तरीके से आज प्रश्न उत्तर हुए, हम लोगों को सबको दिख रहा है प्रभु जी की ऐसे प्रश्न उत्तर यहाँ पर रोज नहीं होते हैं, तो आपकी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर महीने में एक बार आप आ सकें तो हमारे जो कॉन्ग्रीगेशन है, ब्रह्मचारी है, उन लोगों का बहुत प्रगति होगी। तो वी रिक्वेस्ट यू रोज। थैंक यू वेरी मच।